देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। जेनेटिक विकारों से पीड़ितों के लिए अपोलो जीनोमिक्स इंस्टीट्यूशन एक वरदान। अपोलो हॉस्पिटल समूह ने आज स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने के अपने प्रयासों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है। देश भर में अपने अपोलो जीनोमिक्स इंस्टीट्यूट के जरिए 11,000 से अधिक जीनोमिक कंसल्टेशन और उनका मैनेजमेंट पूरा किया है। यह उपलब्धि जीनोमिक्स को क्लिनिकल देखभाल की मुख्य धारा में जोड़ने, मरीजों को जानकारी देकर जागरूक बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य को आकार देने के अपोलो के प्रयास में एक निर्णायक कदम है। So today we celebrated the landmark of 11,000 genomic consultations at the Apollo Genomics Institute. We now have 12 centers across the length and breadth of the country. The idea of establishing the Apollo Genomics Institute was to make sure that access to expertise in clinical genomics through clinical geneticists and counselor becomes easily available, as we know that there is a increasing recognition of the importance that genomics plays in clinical medicine in several specialties, for making a precise diagnosis, for prognosticating in predicting what will happen in the future, for use of certain medication in individuals, and of course for management in cancer, neurological conditions, pediatrics, obstetrics, cardiac diseases. So we believe that with the expansion of the network of the Apollo Genomics Institute, this service will become more and more easily available to citizens across the country. आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए 11,000 जीनोमिक कंसल्टेशंस का जो एक लैंडमार्क हमने अचीव किया है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। अब हम लोगों के 12 सेंटर्स हैं अपोलो जीनोमिक्स इंस्टीट्यूट देश भर में, और पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि नॉलेज जो जीनोमिक्स की यूटिलिटी है कि वो मेडिसिन में कैसे हेल्प कर सकता है, ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, कैंसर में मेडिकेशन कौन सी देनी चाहिए इंडिविजुअल्स को, उनके जेनेटिक मेकअप के बारे में को ध्यान रखते हुए, ऑब्स्टेट्रिक्स में, बच्चों के प्रॉब्लम्स में, कार्डियक में, न्यूरो में नॉलेज बहुत बड़ी है। और हमारे जो 3 एक्सपर्ट्स हैं, क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट और काउंसलर्स, वो इस नॉलेज को पेशेंट्स तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी जो ट्रीटमेंट है उसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से पर्सनलाइज करके हम आगे उनके सामने उसका बेनिफिट लेके जाएं। और हमारा ये प्रयत्न है कि अगले कुछ सालों में हम अपनी जीनोमिक्स इंस्टीट्यूट को और एक्सपैंड करेंगे। 5 और सेंटर हम खोलना चाहते हैं ताकि जो रीच है जीनोमिक्स की वो इंडिविजुअल्स तक आसानी से पहुँचे। I would like to say that genetic disorders are usually considered to be very rare, but if you look at it cumulatively, they are quite common when we look at our large population. So, and many times the challenge is in identifying that the disorder is actually genetic. So, patients will have gone to multiple doctors and still not had a diagnosis. These disorders are usually difficult to diagnose, they require a multidisciplinary management. So, in our centers, we have usually multi-speciality hospitals where we have all kinds of specialties available, and we can manage these patients in a multidisciplinary way. Few pointers to genetic disorders are something which where multiple patients, people in the family are suffering from the same disorder, or there is multi-system involvement like heart, kidney, eyes, multiple systems are involved, or sometimes some disorder which is presenting at a much early age than expected, like say Parkinsonism occurring very early in the 20s or 30s, or something which is not getting treated by the usual method, like say pneumonia, which is treated, keeps recurring. So these are some pointers for genetic disorders. So there should be vigilance for this. We should not ignore there are implications for diagnosis, because we can monitor these patients, we can put them on surveillance, we can improve their quality of life. In fact, many genetic disorders are now having targeted definitive therapies as well, and we can help the patients in accessing these therapies with collaboration, even global collaborations, as we discussed in the press meet. So
यही मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आनुवंशिक बीमारियां जो कहते हैं, कई बारी इसको हम समझते हैं कि बहुत ही रेयर चीज़ है, लेकिन अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें, सारे पॉपुलेशन में इंडिया के देखें, तो ये बीमारियां काफ़ी सारी पेशेंट्स में हैं। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंटर्स होते हैं। कई बारी पेशेंट की डायग्नोसिस होने में ही कई साल लग जाते हैं। तो जैसे कोई बीमारियां हैं जो परिवार में कई जनों को हो रही है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो बहुत सारे शरीर के पार्ट्स में है, जैसे कि मानो किडनी का भी अफेक्शन है, दिल का भी है, आँखों में है और कहीं है, तो फिर वो शायद जेनेटिक हो सकता है। या फिर कोई बीमारी जो नॉर्मल साधारण ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है या रिपीटेडली हो रही है, वो भी जेनेटिक हो सकती है। या फिर कोई चीज़ जो उम्र से काफ़ी जल्दी प्रेजेंट कर रही है, जो नॉर्मली बुढ़ापे में या लेट एज में होती है जल्दी प्रेजेंट, ये सारी जेनेटिक चीज़ें हो सकती है। और इसको डायग्नोस करने का एडवांटेज ये है कि इसके आजकल कई सारी जेनेटिक बीमारियों के डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी आए हुए हैं। और कई बार ये ड्रग्स काफ़ी मुश्किल होते हैं एक्वायर करने के लिए, लेकिन हमारी टीम इसके लिए इक्विप्ड है कि हम अच्छे से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ग्लोबल कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ऐसी दवाइयाँ हासिल करवा के दे सकते हैं पेशेंट्स को। और हमारे जो हॉस्पिटल्स है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। ये सारी बीमारियाँ कई बार मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट से होती है। हमें स्पेसिफिक कार्डियोलॉजिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से, ऑर्थोपेडिशियन से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो फिर वो एक छत के नीचे अच्छे से हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। इसके लिए हम काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, इवन कम्युनिटी लेवल पे। जैसे अवेयरनेस आपने कहा, इवन कम्युनिटी लेवल पे और इवन फिजिशियंस के बीच में, कि जैसे कि जो वो कॉमनली डिसऑर्डर्स देखते हैं जिसमें कि उनको कोई, क्योंकि कई सारे प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं जिनके 5-10% उनकी प्रैक्टिस का होगा जो जेनेटिक बीमारियाँ होती है, तो हम उनको स्पेसिफिकली वो पॉइंटर्स बताते हैं। हम CMEs कंडक्ट करते हैं उनके अवेयरनेस के लिए कि इस प्रकार के पेशेंट्स हैं तो आप रेफ़र करें।